So, ladies and gentlemen, Atul, are you here with us? Atul. Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Very good morning, sir. Good morning, darling. कैसे हो? All well, sir. Very good. Very nice. Very nice. Very nice. So, ladies and gentlemen, can we all welcome Atul Mundada? Welcome, Atul ji. Welcome, Atul ji. Welcome. Good morning, everyone. Welcome, Atul ji. Welcome, Atul ji. Welcome, Atul ji. Welcome, Atul. Welcome. Very nice. Very nice. And Welcome. super very nice. Super very nice. Atul, आप unmute करोगे एक बार? Atul. Yeah, done, sir. Very nice. Excellent. So, कहाँ गए अतुल और ये हो गया spotlight. Yes. So, Atul, why don't you tell us कि आप क्या करते हो, आपका क्या business है, कहाँ based हो और आपने BMP किया, कब किया, उससे पहले क्या challenges थे, quickly, बहुत लंबा नहीं, and then what are the results you've got and what are the systems you've created? First of all, thank you, Rahul Jain, sir, for giving me this platform to share my experience of the course and what all good things we have achieved from past 3 years. I have joined, I've completed my course in 2020. And I'm very grateful to Rahul Jain, sir, that what he has taught us and what rockets we have been able to put in, well, earn in our companies through all the systems which he has taught us. First of all, my name is Atul Mundada. I am from Nasik, Maharashtra, and we are into manufacturing of parts of capacitors in molding and extrusion process. So बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. Very nice. We are into this business from 2009. And now I'll go, sir, I'll share my challenges which we used to face before joining your course. Business क्या challenges क्या थे business में आपको particularly और आप तो कौन से शहर से हो? नासिक से है, near Mumbai, 200 kilometers from Mumbai, नासिक महाराष्ट्र. तो नासिक से हो. नासिक कोई बहुत है बड़ा शहर हो गया, मगर कोई ऐसा कोई मेट्रोपॉलिटन भी नहीं है. बिल्कुल नहीं है sir, right. And that time I suppose there were not many people who used to join your course from Nasik. When I joined, there were only 4 people, and we used to travel to Delhi every Monday and come back to Nasik again in the night. That time there was not online system, and during our course the COVID struck, and then you started the online course. उनको इन लोगों की जान निकल जाती है महीने में एक बार लाइव क्लास के आने के लिए. नहीं सर, हम हर वीक आते थे. आप लोग हर क्लास के लिए नासिक से दिल्ली आते थे? Yes sir, every class, every Monday. My family used to think कि 8 वीक करेगा और छोड़ देगा, या हर वीक मंडे जा ही नहीं सकेगा दिल्ली, थका मारा छोड़ देगा कोर्स. But then it's not possible to leave your course because we know the result, we know the concept which you science which you teach us are what and how important they are, not only in industry, in our business, but in personal growth also. So we are really grateful to do your course. Okay. Very nice. बताइए. The challenges which we used to face, I think, which are very common and which are faced by everyone in day-to-day activities, like delegation of work and monitoring the day-to-day work of all the employees in our company. That was a big task. We used to give the work verbally, and being a director, it is not possible to always keep in your mind what task you have given and whether it is completed or not. So that was major problem. It was very difficult also to monitor the repetitive task. जो डेली बेसिस वीकली बेसिस पे करने चाहिए, मंथली एनुअली करने चाहिए, वो भी टास्क बहुत डिफिकल्ट होता था याद रखना और उस पे मॉनिटर करना वेदर इट इज डन और नॉट. देयर वाज नो ट्रैकिंग ऑफ important documents in our company. There was no system. Basically everything was verbally done, and there was always a firefighting कि कोई कस्टमर का फोन आने के बाद या कोई चीज पे बहुत प्रेशर आने के बाद उस पे काम चालू होता था. No, people basically मैंने देखा था कि they were employed, they were dedicated to work, but they didn't know every day what they have to do.
That was not clear in our company. Every day, someone has to bombard on them, and that the work used to start. And then on this and your science, we built up a system where everyone now in the company has a monitor and they can see what work they have to do on daily basis. So Very nice. whether it is in their FMS, whether it is their repetitive task, whether it is a delegation, they have a one dashboard where everything they know today I have to complete this much task and go home. So they are very happy. They have a free time of 1 hour, 2 hour also, but we don't, divert them. If you have time, you sit idle, no problem. But complete your daily task, whatever it is in your dashboard. तो अतुल, आपको आई डोंट नो याद है कि नहीं, तो कोर्स के दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? Yeah, I have noted down some Challenges जो आते हैं। सर कोर्स के दौरान बेसिकली हमने जब सिस्टम लगाना चालू किया था, जैसे आपने बताया था, हमने पूरे कंपनी के साथ एक मीटिंग किया था, उनका परमिशन लिया था, उनको समझाया था कि मैं कोर्स क्यों करना चाहता हूँ, नॉट ओनली फॉर मी, नॉट ओनली फॉर कंपनी, बट फॉर योर बेटरमेंट। हमने उनके गोल्स लिए थे, उनके गोल्स को भी हमने स्टडी करके कि आपका फ्यूचर में क्या ग्रोथ तुम चाहते हो, तुम्हारा पर्सनल, ये सब मिलके जब हमने किया था स्टार्ट इस प्रोजेक्ट को, सो देयर वाज मच इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयज आल्सो बेसिकली। तो हमें दिक्कत यही थी कि सिस्टम बिठाते वक्त मतलब टेक्नोलॉजी वो टाइम पे मालूम नहीं थी, तो हमारे काफी चेंजेस होते थे। और पर बाद में धीरे धीरे जैसे हम लोग उसको चेंज करते गए तो काफी एम्प्लॉयज का हमें सपोर्ट मिला, इसीलिए हमारे सिस्टम काफी जल्दी और अच्छी से बैठ गए। वेरी नाइस। तो बट आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आती थी, चैलेंजेस क्या क्या आते थे? आपने MIS रख लिया, ठीक था नहीं था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मेरा मेजर प्रॉब्लम वाज ये। अभी इन सबको ना दे आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट चैलेंज, तो इन्हें लगता है कि मेरे को ही सब चैलेंज आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा। नहीं सर, बेसिक हमारा मेजर 2 चैलेंज था। हमारे नासिक होने के कारण यहाँ पे इतने, जैसे आपने EA रखने को बोला था, सो वो लेवल का EA मिलना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, एंड माय कंपनी बीइंग लिटिल आउटसाइड ऑफ नासिक, सो दैट वाज अ बिग चैलेंज टू मी। द सेकंड चैलेंज वाज DME, जो सिस्टम मतलब बिठाए हमारे यहाँ पे, वो नासिक में मिलना बहुत डिफिकल्ट था। तो मैं काफी टाइम तक तो हर सिस्टम, हर टेक्नोलॉजी मैंने खुद बिठाए थे स्टार्टिंग में। देन सेकंड वाज तो आपको मिलता ही नहीं था कोई MIS? MIS तो सर मेरा सबसे लेट चालू हुआ था कोर्स में। कोर्स में सबसे लेट चालू हुआ था? MIS सबसे लेट मेरा चालू हुआ था। I was the last person to start, I suppose. But मेरे आगे के सिस्टम्स जो थे उसके बेस के, वो काफी हद तक सही थे। एंड अब जो मेरा MIS चल रहा है वो एकदम सुपर्ब चल रहा है। एवरी मंडे मेरा हाफ एन आवर में ऑलमोस्ट 30 to 35 स्टाफ का मेरा मीटिंग हो जाता है। EM जो होता है? EM जो होता है मॉर्निंग में, या। वेरी गुड जी। तो व्हाई डोंट यू शो अस सम ऑफ योर सिस्टम्स? या स्क्रीन शेयर आपके पास है? So is it visible, sir? हाँ जी। गाइस, यू वांट टू सी द PMS क्या ये स्किप कर दें? देखना है क्या? कोई इंटरेस्टेड है क्या? चलो ठीक है जी, सब इंटरेस्टेड है, दिखाओ जी। एक सेकंड ना सर, स्क्रीन को मूव कर लेते हैं। यही आप देखना चाह रहे थे ना कि PMS कैसे होता है, क्या होता है? देखो जी, दिखाओ जी। या सर, सो वी हैव डन माय PMS। हमने जो PMS बनाया है, हिंदी ओके ना सर? हेलो, हिंदी चाहिए? हिंदी। सर हमने जो PMS बनाया है वो ऐप शीट के बेस पे बनाया हुआ है, गूगल बेस्ड है। ओके, सो ऑल द डेटा इज कलेक्टेड इन गूगल शीट्स एंड प्रेजेंटेड थ्रू ऐप शीट्स इन अ ऐप फॉर्मेट्स। तो आपको एक बार बताओ पहले कि आपको कोर्स ज्वाइन करने से पहले ये गूगल और ऐप स्क्रिप्ट और ये सब आता था? सर बिल्कुल नहीं, मैं एक्सेल में काम करता था, वो भी छोटे मोटे फॉर्मूलाज ही आते थे मुझे। मैंने कभी ये गूगल का तो पता ही नहीं था, गूगल पे सिर्फ सर्च करना मालूम था। ये ड्राइव और उसके अंदर गूगल शीट्स, ये सब कुछ पता नहीं था, वेरी फ्रैंकली।
और ये सब मैंने सानिध्य जी का कोर्स किया था जब भी पता चला, और फिर ड्राइव लेके फिर हमने सब काम चालू किया था, उनका कोर्स किया, उसमें छोटे मोटे फॉर्मूला सीखे, एंड देन उन्होंने जो बोला कि यूट्यूब देखते रहो और सर्च करते रहो, तो हम सब यूट्यूब पे सीखे। ये जितना भी हमने सिस्टम बनाया है, मैंने और मेरे डीएवी ने, वो पूरा पूरा यूट्यूब देख देख के किया हुआ है सर। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, There is no external help taken, it is all done internally. वेरी नाइस। बताओ, दिखाओ जी। अभी हम लोग जो पीएमएस चलाते हैं उसके बारे में पहले बताते हैं। तो पीएमएस में हमारा ये जो सिस्टम है, ये ऐप एक पूरा डेडिकेटेडली हमने पीएमएस के लिए बनाया हुआ है। सो दिस इज ओनली हैविंग पीएमएस। यहाँ पे हम लोग का पहले सेल्स ऑर्डर रजिस्ट्रेशन होता है। सो एनी कंपनी, एनी कस्टमर हु इज प्लेसिंग एन ऑर्डर पीओ, सो वो पीओ कहाँ पे घूम ना जाए या मिस ना हो जाए, इसके लिए ये स्टेज कंप्लीट किया जाता है। इट्स ऑल लाइक एफएमएस फॉर्मेट में है पीछे गूगल शीट्स पे, सिर्फ डिस्प्ले में ऐसा है। and this is my app, so you can see every stage over here, but wherein अगर अकाउंटेंट का टैली का एंट्री का है तो उसके सिस्टम में सिर्फ इतना आइकॉन दिखता है, और उसको आज के कितने काम है यहाँ पे दिखते जो वो कंप्लीट करता है बेसिकली। So once the PO is, these are the POs which have arrived. Any new PO you can just enter from here, and the entry 2 minute का entry hardly takes 2 seconds 3 seconds to do the entry. And if you see, you can see the purchase order of also any customer if you want to. So what order has been placed, everything is possible to view. वेरी नाइस जी। अब आगे बढ़िए, पीएमएस दिखाइए। हाँ जी सर। One minute सर। ये तो एमआईएस आ गया। एक सेकंड, स्क्रीन में है। या oh shit. आज इनके ना एमआईएस नहीं है इनके साथ, तो थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा, तो वील हैव टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट। ये रहा सर, ऊपर का स्क्रीन सिर्फ हटाते नहीं आ रहा है एक बार। लामा प्लस नीलराज दिख रहा है। Okay. So once the order is placed here, it goes for PO checking whether the rates are correct. So one person is approved, who gives the approval over here before giving it to tally entry. And here the tally entry is done by the accountant, and then the final PO has been approved and sent for production. PMS entry के लिए ये होता है. So if you see in this stage, ये PC का dashboard है, where now there is no work pending or left. वेरी नाइस। अब मेरे को पीएमएस दिखा दो, पीएमएस कैसे होता है। और ये हमारा पीएमएस चालू होता है। अब पीएमएस में वी हैव डन वेरी मच ब्रेनलेस वाला काम कर दिया है, वेर इन फर्स्ट इज दिस ट्रैकिंग शीट्स where what and how much has to be given for production. Once the एक बार PO पंच हो गया और आइटम सिस्टम में हम लोग पंच कर देते हैं, उसके बाद उसको प्रोडक्शन में ऑर्डर किस तरह डालना है, उसके लिए हमने ये सिस्टम बनाया है, where you can see item wise what is balance for dispatch, what is lying in production currently, is there some quantity which has to be produced pending है production में, कुछ inspection में pending है क्या, इसका बैलेंस स्टोर में कुछ है। तो ऐसा करते हुए मैक्स लेवल को भी ये कंसीडर करता है, एंड इट टेल्स अस कि अभी यू आर शॉर्टफॉल ऑफ 51,000 पीसेस फॉर दिस आइटम। सो एनीवन कैन गो हियर एंड डायरेक्टली इशू एन प्रोडक्शन ऑर्डर, द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ दिस, एंड ही कैन गिव अ प्रोडक्शन ऑर्डर्स फॉर हियर 52,000, कस्टमर नेम, and save. So this order is now placed for production. It will remove from here. अब आप देखोगे सर, इसका ऑर्डर जब मैं पाए तो ईयर प्लस 1,000 पीसेस हो गया। यहाँ पे प्रोडक्शन में 52,000 पीस इमीडिएटली आ गए।
Once this is done, the next step is we have defined our stages now. Now this is the stages in our PMS which we have flow chart you can say, which we have defined, where once the order is punched, it goes for production documentation. The documents are prepared for these orders. So now the order which I have punched would be here. This 52,000. This will have a 24 hours का tag दिया है इसको. So 13/6 का इसका completion date है. And once this is done, she goes and put the lot number here, and the order goes for the planning stage. Now this is the planning stage where the main planner can plan this order on the machines. So total we have 17 production machines. So out of which are 14 molding and 2 extrusion and 1 rebating. So accordingly, now from here अब यहाँ से वो देख सकता है कि कौन से मशीन पे कितना लोड ऑलरेडी है. So what we have done is हमने 4 day का ही उसको प्लान करने का अथॉरिटी दिया है. Above 4 days it goes into red. So this machine is already overloaded, which has crossed 96 hours of production time. And then orange is for between this is for 66 to 100%, and then green is between 33 to 66%. So ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे इसका system बनाया हुआ है. So he knows on which machine he can plan this orders. Once the order is planned, it goes for the full kitting process, which you say कि इसका इनको raw material arrange करना है. So now example, if I give you for any one, so if I plan this material in machine, which I know which goes on in one, and I give the production, this is the days I required this product from the production team, lead time. So I assign this over here. So if you see on my full kitting, they will show RM requirement. Here this order has come. So inko raw material, this is for the raw material stores. So they have to issue this raw material to machine number 1. So today they will issue this material. So machine number 1, this much order, new order has been punched and raw material has to be issued. Once the raw material is issued, then it goes for the, when the production start, the quality approval is done, is called FPA. And then this is the production PMS. So machine wise, you can see number machine 1, how many orders are pending, and out of which these red marks are the delayed from production. So for which the time has already been crossed. And what we have done, sir, हमने masters इतना strong बनाया हुआ है कि हमारे यहाँ पे ही आपको product drawing और हमने machine पे ही monitor दे दिया है. So he can go and see the product drawing from here. So you can see the product drawing from here. There is control plan. There is FPA copy of the product. So everything is visible. Even if there is any problem in the product or any past history of any quality issues of the product is shown over here on a photo sign. I'll show you in a later stage if there is any. Once the production is done, we have done is this inspection stage. These are the stage where the final inspection is done of all the product before dispatch. So over here, so if you see, if there are any quality issues like here, this is already been highlighted, like half shot is there, in repetitive issues has been coming for this product. So from production to inspection, everyone knows that this product, ये product में कोई ना कोई problem है जिसे उन्हें ध्यान रख के आगे काम करना है. And what we अब एक काम करते हैं, अब इसको बंद कर देते हैं क्योंकि अब इसके बाद ना लोग डर जाएंगे. अच्छा, एक मिनट इसको बंद करो, अब आप आ जाओ. एक सेकंड. तो बहुत जरूरी जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सारा का सारा काम और ये सारा का सारा जो आपने किया है, ये सारा का सारा पीएमएस आपने किसी का देख के बनाया है या खुद बनाना पड़ता है? सर खुद बनाना पड़ता है. पीएमएस तो खुद ही बनाना पड़ेगा. क्यों बनाना पड़ता है खुद? लोग बोलते हैं नहीं जी मुझे किसी का दिखा दो, मुझे फॉर्मेट दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो. उससे होता है क्या? नहीं सर, हम आपके कोर्स में थे जब हम भी यही चीज के लिए रोते थे आपके पास. क्या बोलते थे?
सर हमें कुछ एक बेस दे दो, हमें कुछ दिखा दो, या हमें कोई तो भी सपोर्ट के लिए फॉर्मेट दे दो, तो फॉर्मेट पे हम काम कर सकेंगे। पर एफएमएस बन सकता है, पीएमएस सर अपना प्रोसेस अपने से बेटर और कोई नहीं जान सकता है, एंड द ओनली पर्सन हु कैन क्रिएट पीएमएस इज योरसेल्फ एंड नो वन एल्स। पीएमएस खुद ही बनाना पड़ता है, आप ये कह रहे हो? यस सर, खुद ही बनाना पड़ता है, क्योंकि नो वन एल्स नोज योर प्रोसेस बेटर देन यू और योर प्रोडक्शन लाइन बेटर देन यू। दैट्स व्हाट आई फील। वेरी नाइस। तो आप इन सबको क्या बोलोगे? ये सब मेरे सर पे चढ़ के डांस कर रहे हैं इस समय, जैसे आप लोग डांस करते थे, और जैसे हर बैच मेरे सर पे डांस करता है, और वो सब के सब यही बोल रहे हैं कि हमें ये प्लीज बता दो, हमारे को फॉर्मेट दे दो, हमारे को ये दे दो, हमारे को वो दे दो। तो मुझे देना चाहिए कि इनको बोलना चाहिए कि खुद बनाओ? सर खुद बनाना चाहिए। मैं तो बोलूंगा मत वेस्ट करो टाइम, सर से कुछ नहीं मिलने वाला, और नहीं मिले वही अच्छा है, क्योंकि ये चीज अगर किसी की देख के बनाओगे तो इट विल बी नॉट गुड एज यू योरसेल्फ कैन क्रिएट इट। यू विल क्रिएट मिरेकल्स इफ यू क्रिएट बाय योर ओन हैंड्स। वेरी नाइस। तो आप कह रहे हो कि हर आदमी को खुद ही बनाना चाहिए ये? 101% सर। और वो खुद बनाने के लिए फिर लग के करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? होटल चेक इन करना पड़ता है? कैसे करना? होटल चेक इन कर लो, 4 बजे उठ लो, ये सब तरीके हैं ये चीज करने के लिए। मैंने खुद किया हुआ है। मैंने 4 AM ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years नॉन स्टॉप किया था। अब मैं काम नहीं करता हूँ, मैं उठता हूँ सुबह, पर एक्सरसाइज और वो सब चीजें करता हूँ, एंड व्हेनेवर आई फील आई वर्क फॉर 1 or 2 hours इफ आई वांट टू। सभी मेरे लिए सिस्टम सब बैठे हुए हैं, systems are working good, company is running smoothly, so it is really my will to work at 4 AM or to do something for physically, or मतलब ट्रेनिंग वेनिंग जो करना है मुझे, it's my choice। वेरी नाइस। तो ये सब करने के बाद, सारी चीजें होने के बाद क्या रिजल्ट मिले आपको? सर रिजल्ट बहुत वेरी गुड। इन्वेंट्री डाउन हो गए बहुत। मेरा हमेशा स्टोर वाज ओवरलोडेड, हमेशा जो चीज बेचनी है वो चीज रहती नहीं थी, और जो चीज है उसका कोई डिमांड नहीं था। अब क्या हो गया है, इससे बहुत सिंप्लीफाई ऐसे हो गया है कि एवरीवन, एंड सर हमने जो पीएमएस में ना कलर हाईलाइट किया है, सो व्हेनेवर वी ऑर्डर फॉर आईएमएस दैट शोज ब्लैक कलर, और कोई कस्टमर का ऑर्डर है तो वो पर्पल कलर में दिखता है। सो एवरीवेयर इन द प्रोसेस पर्सन नोज कि ये माल बनाऊंगा तो कल बेच सकते अपनी कंपनी, कल बेचेंगी तो उसका इनवॉइस बनेगा और 30 days में पैसा आ जाएगा, या एडवांस में आना है जो भी है। सो दे नो द इम्पोर्टेंस की फंड रोलिंग, मैंने उनको बताया हुआ है सब। सो दे आर वेरी मच कीन नाउ टू गेट द ऑर्डर्स फॉर द पर्पल हाईलाइटेड आइटम्स। वेरी। तो ये सारा का सारा ऑटोमेट हो गया है, अब ये सब अपने आप चलता है। सर मेरे ऑर्डर बुक्स पहले 35-40 days के लिए पेंडिंग रहते थे, बुक रहते थे, आज हम लोग 7 to 8 days में डिलीवरी करते हैं। पहले कितना टाइम होता था डिलीवरी करने में? 30 to 45 days। 30 to 45 days। पहले आप 30 दिन में माल देते थे, अब कितने दिन में माल देते हो? 8वें दिन मैक्स। एक आधा कोई प्रोडक्ट लेट हुआ तो 15 days इज मैक्स टू मैक्स, बट दैट इज ओनली 5% or 3% ऑफ माय टोटल डिस्पैचेस। वाओ 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 वाओ। सर रोलिंग काफी फास्ट हो गया। मेरा स्टॉक आप देखोगे, अगर मैं दिखा देता था, काफी कम आइटम्स मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए, बहुत कम। मतलब आपने जब आपका कोर्स चालू किया था और मैंने इन्वेंट्री में आईएमएस में काम चालू किया था, सो आई हैव आल्सो शेयर्ड इन माय बिटवीन माय कोर्स आल्सो कि आई हैव रिमूव्ड ऑलमोस्ट 1.7 CR फ्रॉम माय इन्वेंट्री। मेरा तो तीसरे महीने में ही मेरा कोर्स फ्री हो गया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपका टोटल इन्वेंट्री पहले कितना था? पहले वॉज 4.5 CR के आसपास था, जो मैंने 2.25 के आसपास वो टाइम बिटवीन द कोर्स लेके आया था, एंड नाउ इट इज ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये तब हुआ है जबकि आप ग्रो कर रहे हो? जी हाँ सर, वी आर ग्रोइंग एट द पेस ऑफ अराउंड 25 to 30% ऑन एनुअली। और प्रॉफिट्स कितने ग्रो कर रहे हैं हर साल? प्रॉफिट इज बिटवीन 60 to 80% एनुअली। पहले साल आपने कितना ग्रो किया प्रॉफिट? 89% किया था। सेकेंड फर्स्ट ईयर आपने 89% प्रॉफिट ग्रो किया।
किया था सेकेंड ईयर आफ्टर द कोर्स। सेकेंड ईयर इट वाज 86%। एक मिनट, पहले साल आपने पहले 89% ग्रो किया, उसके 89% के ऊपर आपने 86% और ग्रो कर गए, यस यस राइट। उसके बाद ये साल में 63% ग्रो हुआ है। ये साल में 63% उसके ऊपर ग्रो हुआ है। बट दिस वाज मैनिपुलेटेड बिकॉज वी हैव परचेज सम लैंड, सो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मतलब फंड्स निकालने पड़े थे एक्स्ट्रा थ्रू डिफरेंट मींस। तो वो जो लैंड परचेज करना है उसके बाद 63% ग्रो किया है। यस सर। सर आप जमीन खरीदने के बाद करोगे 63%। हमें ये जो लैंड परचेज की दैट इज विदाउट एनी लोन, विदाउट एनी लोन क्या बात है, सारा इंटरनल अप्रूवल से किया। से ही किया। वेरी नाइस, वेरी They are almost dedicatedly investing around 1 CR annually in our capital investment, be it machinery, be it any tooling machines, improvement point of view से technology point of view से, so हमने हमारा बजट में रखा हुआ है 1 CR every year to invest in capital investment of the company. उसके बाद ये 89-87% आ रहा है। Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रॉकेट लग चुके हैं सर, 101% सर। रॉकेट लग always tell everyone, जैसे अभी किसी ने शेयर किया था कि they are very gratitude to the person who have told them to join this course. सर मुझे जो भी मिलता है मैं यही बोलता हूँ, ज्वाइन कर लो, पैसा मत देखो, पैसा ऐसे ही रिकवर हो जाता है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो कोर्स फ्री हो जाता है, वेरी गुड। और अभी हाउ इज लाइफ, अभी कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना काम? तो आपने ये 89, 89, 89, 86, 63% ग्रो करा है, और आपकी पहले इन्वेंट्री वाज 4.5, अब वो 2.5 आ गई है। राइट सर, राइट। ग्रोथ होने के बावजूद भी आपकी इन्वेंट्री कम ही है। यस सर, इन्वेंट्रीज नहीं बढ़ी है, इन्वेंट्रीज उतनी है, बस मूवमेंट फास्ट हो गया, मटेरियल इज नॉट लाइंग इन द कंपनी, वेरी नाइस। फास्ट मूविंग है। तो आप सोचो, आपके प्रॉफिट डबल हो गए, फिर डबल हो गए, 89% को मैं डबल मानता हूं। आपके प्रॉफिट डबल हो गए, उसके साल अगले साल फिर डबल हो गए, फिर उसके साल फिर डबल हो गए, और आपकी इन्वेंट्री 4.5 करोड़ से 2.5 करोड़ पे आके रुक गई, मतलब हाफ होके रुक गई वहां पर, और प्रॉफिट में रॉकेट लगे। और ये जो इतना बढ़ गया है बिजनेस, ये तो आपको जैसे आपने बोला कि भाई मेरा प्रॉफिट डबल हो गया, फिर डबल हो गया, तो उसमें आपको नई फैक्ट्री खरीदनी नहीं पड़ी कि भाई प्रॉफिट डबल हो गया। तो कई बार बोलते हैं जी वो, तो इसके लिए तो नई फैक्ट्री खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आपने 30% ग्रो किया, उसके ऊपर अगेन 30% ग्रो किया, तो मोर और लेस, और फिर 30% ग्रो कर रही है, तो आपकी टर्नओवर तो आपकी डबल से भी ज्यादा होगी ना। बहुत टर्नओवर ग्रोज बाय 30-35%। बिफोर बीएमपी और आज कितना टर्नओवर है? अभी आज की डेट में मतलब अभी का 22 CR नेट टर्नओवर है, ग्रॉस वुड बी 25-26 CR। जब आपने बीएमपी ज्वाइन किया था उस समय कितना टर्नओवर था? टाइम वाज 15 CR ग्रॉस एंड आई सपोर्ट 12 or 13 CR वाज द नेट। ग्रॉस नेट मतलब? हाँ मतलब आफ्टर जीएसटी टैक्सेशन। अच्छा, तो वो 12 करोड़ था। 12 करोड़ था और अभी इट्स 21। तो 12 का 21 करोड़ हो गया, और उसी फैक्ट्री में चल रहे हो आप? फैक्ट्री में चल रहे। या वी इन्वेस्टेड इन मशीन, वी बॉट 4 मशीन्स न्यू, 4 to 5 मशीन्स न्यू, बट देन फैक्ट्री चलने की जरूरत नहीं पड़ी। फैक्ट्री बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। स्टाफ में भी ओनली आई सपोज 20% वी इंक्रीज्ड, बट दैट टू ऑन अनस्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर, वैसे वाले लोग बढ़ाए। So 20% was increase in labor and capital. As I told you, we invested in capital investment किया because we removed the money from the inventories starting में। तो जो पैसा इन्वेंट्री से निकाला उसे हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके हमारा ग्रोथ बढ़ाया। और अभी आपको हफ्ते में कितने दिन काम करना पड़ता है? देखा जाए तो आई एम फ्री टिल 11-12, की जरूरत नहीं है, पर मैं ऑपरेशंस चलाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए आपको कितना काम करना पड़ता है? सर दिन का 1-2 घंटा, या मैं एक दिन आके भी कर लूँ तो हो जाए, मुझे देखना कुछ नहीं पड़ता है बेसिकली। पर फिर कुछ है नहीं तो कंपनी आता हूँ मैं जरूर, एंड आई ऑलवेज ट्राई। अभी मुझे बेसिकली सेल्स, वी आर नाउ आई एम गोइंग इनटू सेल्स। अब मुझे सेल्स पे काम करना चालू किया है हमने। सो अगर देखा जाए ऑपरेशन 1 day a week इज इनफ, 1 day a week इज इनफ।
वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड है जी, वेरी वेरी गुड है, एक्सीलेंट है और वेरी गुड है। हाँ जी, बाकी सब लोग बताओ जी, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल, कोई सवाल नहीं जी, सब हो गया। पीएमएस बनाने में पहला जो पीएमएस आपने रोल आउट किया ढंग का, उसमें कितना टाइम लगा? पहला पीएमएस तो हमारा हो गया था 1.5 से 2 महीने में, बट उसके बाद ये जो पीएमएस आप दिखाया मैंने आपको, दैट वाज अ 5th वर्जन. So there was always a scope of improvement, and which we kept on doing it. And this PMS we are working from since last 1.5 year, which we rolled out, and it is running smoothly. But yeah, obviously first PMS हमें run किया था 1 month के अंदर, 1.5 month के अंदर, and versions हमने change किए काफी. वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हो सबको कि अभी अभी का जो टाइम है पीएमएस बनाने का, ये कितना वैल्यूबल है? मतलब ये अभी बनाए कि बाद में बना लें? अभी हम कुछ और काम कर लेते हैं, क्लाइंट का कॉल ले लेते हैं, झाड़ू मार लेते हैं, टीम से बात कर लेते हैं, या सारे काम बंद करके पीएमएस करना चाहिए फुल? सर अभी छूट गया तो मुश्किल है। मेरा MIS जैसे छूट गया था, मैंने आपको बताया आई वाज द लास्ट पर्सन टू इम्प्लीमेंट, जबकि आपने मुझे हमने सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वो टाइम पे जो ये पीएमएस की आप जो बता रहे हैं सोच कि अभी करना चाहिए या बाद में करना चाहिए, वो मैंने MIS के लिए मेरे यहाँ पे कर दी, तो मेरी सबसे लेट बनी। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसका इम्पोर्टेंस मुझे अब समझ में आता है, जब वो अकाउंटेबिलिटी होती है लोगों को, रोज मंडे मॉर्निंग को आके, एवरी मंडे मॉर्निंग को आके उस पे 2-5 सेकंड का सिर्फ स्कोरिंग का डिस्कशन भी नहीं, क्या स्कोर हुआ है वो बताया जाता है, और वो पेपर उनको हैंड ओवर किया जाता है। सो उसका इम्पोर्टेंस आज तो वैसे ही पीएमएस अगर अभी नहीं किया स्टार्ट, तो आप फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा बाद में। अभी कैसा है, बहुत लोगों का सपोर्ट होता है, अपने को दिखता है कि अरे मेरे कलीग मेरे साथ जो कर रहा है उसने कर दिया इम्प्लीमेंट। सो वो जो जोश होता है, वो जोश बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू डू दिस वर्क। दैट्स व्हाट आई फील। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो अभी सबको आपका एडवाइस क्या होगा, पीएमएस कब बनाना चाहिए? सर लग जाओ सब छोड़ के पीएमएस बनाने के लिए। अब छोड़ के मतलब रेगुलर काम, कस्टमर, ये सब आपके अभी तो ये लग गई होगी, पीसी हो गए, सब पे छोड़ दो, भरोसा करो उनको, करने दो वो काम, आप पीएमएस पे लग जाओ, ऐसा मेरा थिंकिंग है। क्योंकि पीएमएस इज द रूट ऑफ एवरीथिंग। वहां से जहां से आपका प्रोसेस प्रोडक्शन जो होता है वो सॉर्टेड हो गया, सो बाकी ये सब चीजें लेटर ऑन टेक केयर हो जाती है। जैसे मैंने बताया, मेरा डिलीवरी 30 to 40 डेज का था, जो 8 डेज हो गया, तो सोचो कितने कस्टमर्स के फोन कॉल्स बंद हो गए मेरे को, वो एक चीज टोटली बंद हो गई मेरी। और सारे ऑर्डर तुम्हारे पास ही आ गए हैं अब, बाकी सब इंडस्ट्री 30 दिन में, इंडस्ट्री कितने दिन में देती है? यूजुअली 20-25 डेज, 30 डेज ऐसे ही इसमें देती है। मोल्डिंग में टाइम लगता है, मतलब है उतना प्रोसेस का। तो मोल्डिंग में बाकी सारी इंडस्ट्री 15 या 20 दिनों में देती है, आप उसको या 20 दिन में देती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब ऐसी कंपेटिटिव एडवांटेज बन गई जो किसी को कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता, किसी और के मतलब डैडी के दम दम के मतलब बाप के बस की नहीं है, हिंदी में बोलते हैं तो, कि वो ये 7 दिन में डिलीवरी दे दे। अगर आप सोचो, आप अगर आज कितने दिन में डिलीवरी दे रहे हो और उसको 1/3 मतलब उसको 1/3 कर दो, अगर आप 10 दिन में डिलीवरी दे रहे हो, 3 दिन में डिलीवरी देने लग जाओ, तो आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज कितनी हो जाएगी? अगर आप 20 दिन में डिलीवरी दे रहे हो, आप 6 दिन में डिलीवरी दे रहे हो, अगर आप 30 दिन में डिलीवरी दे रहे हो तो 9 दिन में डिलीवरी देने लग जाओ, तो सोचो आप किस लेवल पे काम करना शुरू कर जाओगे। और वो सब पीएमएस का कमाल है, पीएमएस पीएमएस और सिर्फ पीएमएस। पीएमएस मतलब पीएमएस के अलावा कुछ नहीं है, पूरा गेम ही पीएमएस का है। यस सर। Okay, great. So thank you so much. Thanks for joining us, Atul. Thank you so much थैंक यू, थैंक्स अ लॉट for being with us today. Thank you so much. Thank you for being with us. Thank you, Ji. Okay. Ladies and gentlemen, can we all unmute and say thank you? Thank you. Thank you, Atulji. Thank you very much, Atulji. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Very nice, Ji. Very nice. Excellent. Excellent. So thanks, Atul, once again for coming and sharing and showing
and giving us hope and giving us inspiration that this can be done. और नासिक जैसी छोटी जगह में बैठ के अगर आप कर सकते हो तो मेरे ख्याल से तो ये हो ही जाएगा हम सबका, अगर हम शिद्दत से मेहनत करें. 101%. Thank you, sir. Thanks a lot. Have a great day. Thank you. Bye bye. Thank you.